اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم محترم سامعین کرام، کہنے والا کہتا ہے یہ صدا آتی ہے پیہم بدر کے میدان سے، یہ صدا آتی ہے پیہم بدر کے میدان سے، پیچھے ہٹتے ہم نہیں کبھی اپنی پہچان سے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے ایمان والوں کا شعار، نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے ایمان والوں کا شعار، یہ درس ملتا ہے ہمیں تیور مسکان سے۔ سامعین ذرا سمجھے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اور یہ اشعار پڑھے، یہ اشعار اور یہ آیت کس طرف مشیر ہے۔ آج ہم چوطرفہ نظر ڈال کر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہیں دشمنان اسلام کو بدنام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں اسلام کو دہشت گردی کا اڈا بتلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں وہ اپنی عدالتوں سے 3 طلاق 1 طلاق کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں یہ آواز نظر آ رہی ہے کہ اپنی مساجد سے مائک اتار دیجئے، بغیر مائک کے اذان پڑھیے۔ بڑا شریف کوئی ہوگا جو یہ کہے کہ بغیر مائک کے اذان پڑھ لیجئے، ورنہ تو ان کے دلوں کی دھڑکنیں اور دلوں کی آوازیں یہ ہیں کہ مائک بھی اتار دیجئے اور اذان بھی مت پڑھیے۔ اصل تو ان کے دلوں کی دھڑکنیں یہ ہیں۔ لیکن میں غور سے گزار کرنا چاہوں گا کہ آخر کوئی تو 3 طلاق اور 1 طلاق کا مسئلہ اٹھا رہا ہے، اور کوئی مائک اتروانے کی بات کر رہا ہے، اور کوئی مسلمان بچیوں کے چہروں سے نقاب ہٹانے کی، نقاب اتروانے کی بات کر رہا ہے۔ آج آپ اور ہم سب مل کر ذرا آپس میں سوچیں اور ایک سوال قائم کریں، آخر اگر کوئی مائک اتروانے کی بات کر رہا ہے، اگر کوئی 3 طلاق کو 1 طلاق کہنے کی بات کر رہا ہے، اگر کوئی پردہ اتروانے کی بات کر رہا ہے، تو آخر ایسا کیوں اور وجہ کیا ہے اس کی؟ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اور وثوق اور بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ سوال ہے، پردہ کیوں اتروایا جا رہا ہے، مائک کیوں اتروایا جا رہا ہے، 3 طلاق کا مسئلہ 1 کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ ذرا جو حضرات سامنے بیٹھے ہوئے سمجھے میری اس بات کو، اور اس بات کو سمجھ کر کے گوشے گزار کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔
मोहतरम हज़रात, अगर देखा जाए तो कोई दुश्मन इस्लाम ऐसा नहीं है जो माइक उतरवाने की बात करे, 3 तलाक को 1 तलाक कहने की बात करे। जरा हम और आप अपने अपने गिरेबान को झांक कर देखें। मैं आपको हर एक की तशरीह बतलाऊं, लंबा वक्त होगा, लेकिन मैं आपको मुख्तसर ही बतलाता हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की तरफ अपने जहन को ले जाइए। एक वक्त वो था कि मक्का मुकर्रमा के अंदर आज़ान होती थी और आज़ान के अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को सिखला दिए। वो सहाबी आज़ान पढ़ते थे और आज़ान किस तरह पढ़ते थे, सारे उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक हैं। उस वक्त कोई माइक नहीं था, उस वक्त कोई लाउड स्पीकर नहीं था, उस वक्त कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि वो आवाज बाहर पहुंचाई जाती। जब भी हज़रत बिलाल आज़ान पढ़ते थे, बगैर माइक के आज़ान पढ़ते थे, बगैर लाउड स्पीकर के आज़ान पढ़ते थे, कोई ऐसा आला इस्तेमाल नहीं करते थे कि जिससे आवाज दूर तक पहुंचाई जाए, बगैर माइक के आज़ान पढ़ते थे। तो अगर असल पूछा जाए और किताबों को खंगाल कर देखा जाए तो वो ये है कि आज़ान पढ़ने के लिए माइक कोई जरूरी नहीं है। जरा समझ लीजिए बात को, अज़ान पढ़ने के लिए माइक कोई जरूरी नहीं है। उसके बावजूद आज तमाम मसाजिद में माइक इस्तेमाल किया जा रहा है। हर मुअज्जिन माइक पर अज़ान पढ़ रहा है। सुबह की अज़ान है, माइक पर है। ज़ुहर की अज़ान है, माइक पर है। असर की अज़ान है, माइक पर है। मगरिब की अज़ान है, माइक पर है। इशा की अज़ान है, माइक पर है। ये बयान है, माइक पर है। अब तो हर चीज दीन की इशाअत का जो जरिया है माइक है, माइक के जरिए से वो आवाज पहुंचाई जाती है। आखिर ऐसा क्यों? इसकी तो जरूरत नहीं थी। सहाबा के दौर में माइक नहीं था, मेरे नबी के जमाने में माइक नहीं था। हज़रत बिलाल की तारीख उठाकर देख लीजिए, बगैर माइक के अज़ान पढ़ी है। अबू महज़ूरा की तारीख उठाकर देख लीजिए, बगैर माइक के अज़ान पढ़ी है। हर सहाबी ने बगैर माइक के अज़ान पढ़ी है। आज ये लाउड स्पीकर और माइक क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? आइए मैं आपको बतलाऊं, जदीद फिक़ही मसाइल खोलिए, दूसरी तफासिर की किताब खोलिए, दूसरे मसाइल फिक़हिया की किताब खोलिए, किताबों के अंदर मिलेगा उलमाए किराम ने इत्तिफाक किया, उलमाए किराम ने मसला बयान किया, कहा कि वो दौर ऐसा था कि उस दौर में आवाजें दूर तक पहुंच जाती थी। अगर कोई शख्स कारखाने में काम करता होता था, आज़ान की आवाज सुनकर, अगर कोई शख्स खेत में काम करता था, आज़ान की आवाज सुनकर मस्जिद में दौड़ा हुआ आ जाता था। अगर कोई शख्स अज़ान की आवाज़ सुनता था और कारखाने में होता था या दुकान में होता था या मकान में होता था, वो आकर के आवाज़ सुन करके मस्जिद में दौड़ा हुआ चला आता था। लेकिन बुजुर्ग सुनते रहना, बगैर माइक के ही सुनते रहना, माइक कोई असल है ही नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है, माइक कोई असल है ही नहीं। और हमारे यहाँ तो हाल ये है कि माइक है तब भी और बगैर माइक के भी आवाज़ पहुँचेगी। दस्त तो दस्त रहे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बस सुनते रहिए और समझते रहिए बात को। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, सहाबा किराम बगैर माइक के आज़ान पढ़ते थे। उलमा ने कहा अब माइक पर आज़ान पढ़ी जाएगी, क्यों? कहा इसलिए कि उस वक्त में जब सहाबी अज़ान पढ़ते थे इतनी आबादी नहीं थी, इतने मकानात नहीं थे, इतनी बिल्डिंगें नहीं थी। एक सहाबी की आवाज़ दूर तक पहुँचती थी। कारखाने में काम करने वाला भी आवाज़ सुनकर मस्जिद में चला आता था, दुकान में बैठने वाला भी आवाज़ सुनकर मस्जिद में आ जाता था, तिलावत करने वाला भी आवाज़ सुनकर मस्जिद में आ जाता था। आज आबादी घनी हो गई, मकानात बन गए, बिल्डिंग